السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں 5 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری، 2047 تک 3 کھرب ڈالرز کی معیشت بنانے کا عزم۔ دن بھر وزیر اعلیٰ اور وزراء کی ٹیمیں فیوچر سٹی میں رہیں سرگرم۔ تیلگو بچوں کی توہین اور بھاری محاصل عائد کرنے پر کیا حیدرآباد کی سڑک کو امریکی صدر ٹرمپ سے موسوم کیا گیا؟ BRS لیڈر ہریش راؤ کا سوال۔ انڈیگو فضائی بحران میں کمی، معمول کے مطابق پروازیں چلانے کا کیا دعویٰ، سرمائی شیڈول میں کمی کرنے ایئر لائنز کو حکومت کی ہدایت۔ اور حیدرآباد کے ڈونڈیگل میں ٹپر لاری نے پلسر کو دی ٹکر، 2 افراد بشمول خاتون برسر موقع ہلاک۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ رائزنگ 2 روزہ گلوبل سمٹ میں 5,40,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجاویز وصول ہوئی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ سمٹ کی دوسرے دن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے وزراء کی جانب سے ملک و بیرون ملک مختلف کمپنیوں، فرمز، ادارے جات کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور صنعتی یونٹس کے معاہدات طے پائے ہیں۔ جن شعبوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی تجاویز وصول ہوئی ہیں ان میں فوڈ پروسیسنگ، فارما، ڈاٹا انالیسس، توانائی، سیاحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم،
طب, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, अमकना, सनत, फराहमी रोजगार, दस्तकारी और सकाफत काबिल जिक्र हैं। समिट के पहले दिन 2,43,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ वसूल हुई थी। दूसरे दिन 2,96,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ वसूल हुई हैं। फलाही स्कीमात व इम्कना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर भी खास तवज्जो दी गई। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान मंगल को गैर मामूली मुआहदे हुए हैं। सियाहत के शोबे के लिए 7,045 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इससे रास्त तौर पर 10,000 और बिलवास्ता तौर पर 30,000 मुलाजमतें फराहम होंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर जो अहम मुआहदे हुए हैं, इनमें फूडलिंक F&B प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3,000 करोड़ रुपए, KEI ग्रुप एंड एसोसिएट 200 करोड़ रुपए, राधीरा ग्रुप 120 करोड़, पॉल इन ग्रुप तुर्की 300 करोड़ रुपए, एटमाउ सेफियर होटल्स मालदीव 800 करोड़, F इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, होइशा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 300 करोड़, ड्रीम वैली रिसोर्ट 1,000 करोड़, सावरोस इंटरनेशनल 1,000 करोड़, सलाम नमस्ते दोसा हट 25 करोड़ के अलावा दूसरी कंपनियों ने भी मुआहदे किए हैं। अरविंदो फार्मा की तरफ से भी 2,000 करोड़ रुपए के सरमाए का मंसूबा है, जिससे 3,000 रास्त और बिर्रास्त मुलाजमतें फराहम होंगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी भी सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फिल्मी सनत की शख्सियतों ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने फ्यूचर सिटी में स्टूडियो कायम करने की ख्वाहिश रखने वालों को हुकूमत की तरफ से मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। समिट के अख्तिताम पर मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। तेलंगाना राइजिंग समिट के तनाजुर में आईफा के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने वज़ीर आला को बताया कि हैदराबाद में वो GCC के क़याम के बारे में गौर कर रहे हैं। वज़ीर आला ने वफ़द को मुमकिना मदद का भी तयक़ुन दिया। इसके अलावा अमेरिका की क्रिस्टल लेगनिस, ग्रीन पैंथर्स के नुमाइंदों ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना राइजिंग समिट पैनल मुबाहिस के दौरान कहा कि $3 ट्रिलियन की मईशत का हुसूल उसी वक्त मुमकिन है जब सरमायाकारी को जिद्दत के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अगले 22 सालों के लिए तय किए गए निशाने के लिए तेलंगाना को उसके मौजूदा इक़्तिसादी ढांचे को कम अज़ कम 16 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, हमारे मुस्तकबिल का अहद है। उन्होंने कहा कि तरक्की के इस निशाने को हासिल करने के लिए हमें अपनी मईशत की बुनियादी मसावात को तब्दील करना होगा। तेलंगाना राइजिंग समिट के दूसरे दिन 33 अजला में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल नकाब कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना राइजिंग समिट के दूसरे दिन वज़ीर आला ने 20 आला सतही इजलासों में शिरकत की, जिसमें तालीम, बिजली, सियाहत, लाइफ साइंस, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल और मसनूई ज़हानत जैसे सनतकारों के साथ वज़ीर आला ने तबादले ख्याल किया। तेलंगाना की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त क़िरात पेश किया है। तेलंगाना राइजिंग के सिलसिले में तेलुगु तल्ली के मुजस्सिमों की रस्म इजराई की तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए अच्छा दिन है। इसी दिन साल 2009 में तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया गया था। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की 6 दहाइयों से ख्वाहिशात को समझकर तेलंगाना की तश्कील की पहल का आगाज़ किया। 2004 के इंतखाबात के दौरान करीमनगर में सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील का वादा किया था। सोनिया गांधी की रहनुमाई हमारे इंतज़ामिया में होगी। उन्होंने रियासत की आवाम से 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह शानदार पैमाने पर मनाने की अपील की। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर नशीन सोनिया गांधी की मंगल को सालगिरह मनाई गई। गांधी भवन में सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए सोनिया गांधी की खिदमात को खिरात पेश किया।
इस मौके पर केक काटा गया, सरकारी स्कूल के तलबा में किताबें तकसीम की गईं। अपने खिताब में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी की कोशिशों से ही तेलंगाना की तश्कील हुई। इस मौके पर साबिक MP हनुमंतराव भी मौजूद थे। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, V श्रीहरि और विनोद कुमार ने इस सिलसिले में मिनिस्टर क्वार्टर्स में केक काटकर सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी। मिनिस्टर क्वार्टर्स के खातून अमले में साड़ियां भी तकसीम की गईं। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने सवाल किया है कि अमेरिका में तेलुगु बच्चों के साथ तौहीन आमेज सलूक करने पर हैदराबाद की सड़क को डोनाल्ड ट्रंप से मौसूम किया जा रहा है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि ट्रंप से हैदराबाद की सड़क को इसलिए मौसूम किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान पर भारी महासिल आयद किए हैं। सोनिया गांधी की तरफ से तेलंगाना दिए जाने के वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर हरीश राव ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया और फिर 23 दिसंबर को बयान से दस्तबरदारी अख्तियार की गई। हमें 23 दिसंबर को तेलंगाना को यौम दगा मनाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि सोनिया गांधी तेलंगाना की तहरीक के दौरान जान देने वाले नौजवानों की अमवात की जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन की मुफ्त बस सफर के 2 साल की तकमील पर RTC के मुलाजिमीन और अमले को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में पूनम प्रभाकर ने कहा कि 9 दिसंबर 2023 को वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना की बहनों के लिए RTC में मुफ्त बस सफर का आगाज किया गया था। आज 2 साल हो चुके हैं। अब तक 251 करोड़ खवातीन ने बस में मुफ्त सफ़र किया है। खवातीन को इस स्कीम से हॉस्पिटल जाने, स्कूल और कॉलेज जाने, मंदिरों को जाने के लिए भी सहूलत मिली है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से उन्होंने तेलंगाना की बहनों, भाइयों को, RTC मुलाजमीन और अमले को मुबारकबाद दी है। इंडिगो एयरलाइंस का बहरान बड़ी हद तक खत्म हो रहा है। पीर को 7वें दिन एयरलाइंस के मुताबिक मामूल की परवाजें चलाई गईं। ये तवक्का की गई है कि सूरत हाल में मजीद बेहतरी होगी। मंगल को एयरलाइंस ने 1800 परवाजें चलाने का दावा किया है और ये कहा गया कि चारशंबे को 1900 परवाजें चलाई जाएंगी। मुल्क के 6 बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद से 422 परवाजें मनसूख की गईं। सेक्रेटरी शहरी हवाबाजी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि एयरलाइंस की जानिब से परवाज़ों को मामूल के मुताबिक चलाया जा रहा है। जिन मुसाफिरीन ने सफ़र को मनसूख किया है उनके टिकट की रकम की वापसी के लिए अब तक 827 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं। माबाकी वापसी की रकम भी अदा कर दी जाएगी। सामान की वापसी के बारे में उन्होंने बताया कि तकरीबन 90% लगेज वापस कर दिया गया है। माबाकी लगेज की वापसी जारी है। एक्शा एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के तैयारे मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान 4500 परवाजें मनसूख की गई थीं। डायरेक्टर जनरल बराए शहरी हवाबाजी ने इंडिगो से कहा कि वो अपने सरमाई शेड्यूल में 5% की कमी करते हुए 10 दिसंबर तक नए शेड्यूल तैयार करें। कुकटपल्ली के BRS MLA माधुराम कृष्ण राव ने तेलंगाना जागृति की लीडर कविता के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्ण राव का कहना था कि उन्होंने ऐसे कई कुत्तों को देखा है। इतना ही नहीं, BRS MLA ने यह भी कहा कि हरीश राव को BRS से दूर करके और KTR को जेल पहुंचाकर कविता लूटमार करना चाहती हैं, लेकिन BRS पार्टी कभी ऐसा होने नहीं देगी। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहरीरी इम्तिहान को फौरी मुलतवी करने का मुतालबा किया है। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिवशेखर की क़यादत में वकला के ग्रुप ने साबिक वजीर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। हरीश राव ने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग के दिन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इम्तिहान मुनक्किद करना मुनासिब नहीं है। वकला की तरफ से भी साबिक वजीर से दरख्वास्त की गई कि 14 दिसंबर को होने वाले इम्तिहान को मुलतवी करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए। हरीश राव ने कहा कि इम्तिहान में तकरीबन 4000 वकला शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ हैदराबाद में भी हैं, लेकिन उम्मीदवारों का वोट उनके अपने गाँव में हैं। इम्तिहान चूँकि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होता है, इस तरह उम्मीदवारों का गाँव जाकर वोट इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। आइन के ज़रिए हर किसी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए इम्तिहान को मुलतवी करना चाहिए।
تلنگانہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے مارچ 2026 میں ہونے والے SSC امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 14 مارچ بروز ہفتے کو پہلا امتحان ہوگا۔ امتحان کے اوقات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک رہیں گے۔ دوسرا امتحان سیکنڈ لینگویج 18 مارچ، تھرڈ لینگویج انگلش 23 مارچ، میتھمیٹکس 28 مارچ، سائنس پارٹ 1 2 اپریل، سائنس پارٹ 2 7 اپریل، سوشل اسٹڈیز 13 اپریل، OSSC مین لینگویج پیپر 1 15 اپریل، OSSC مین لینگویج پیپر 2 16 اپریل کو منعقد ہوں گے۔ کمشنر ہائیڈرا AV رنگناتھ نے منگل کو سعید آباد ایراکنٹا کا دورہ کرتے ہوئے بتکما کنٹے کی طرز پر ترقی دینے کا مقامی عوام کو یقین دلایا۔ کمشنر ہائیڈرا نے ریونیو، آبپاشی اور متعلقہ پولیس عہدیداروں کے ہمراہ ایراکنٹے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض افراد ایراکنٹے کی 6 ایکڑ اراضی کو قانونی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 70 تا 80 سال پرانے ریونیو ریکارڈز کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہی اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ DCP ساؤتھ زون کرن کھارے IPS نے جنوبی ہند کی عظیم دینی درسگاہ جامع نظامیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امیر جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد سے خصوصی طور سے ملاقات کر کے جامع نظامیہ کے تعلق سے معلومات حاصل کیں۔ مفتی خلیل احمد نے جامع نظامیہ کی 150 سالہ تاریخ سے DCP کو واقف کروایا۔ اس موقع پر DCP کو آڈیٹوریم، بورڈنگ اور لائبریری کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ جامع نظامیہ کی لائبریری میں حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم نسخے اور ان کے کئی خطوط بھی انہیں دکھائے گئے۔ علاوہ ازیں انہیں فارسی میں تحریر کی گئی مہابھارت اور رامائن کتابوں کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اس موقع پر DCP ساؤتھ زون کرن کھارے نے مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قدیم کتابیں تو جامع نظامیہ کی لائبریری میں موجود ہیں، لیکن نئے دور کی تصانیف نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں امیر جامعہ مفتی خلیل احمد، صدر اور سیکریٹری کے علاوہ کمیٹی کے ممبران سے بھی ملاقات کا موقع ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانا شہر اب ایک ماڈرن سٹی بننے جا رہا ہے۔ مجلسی ارکان مقننہ کی وفد نے ہاسپٹل میں زیر علاج پارٹی کے معتمد عمومی اور سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی عیادت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ اویسی ہاسپٹل میں سید احمد پاشا قادری زیر علاج ہیں اور آج ان کی عیادت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سے بھی سابق رکن اسمبلی کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی گئیں۔ رکن اسمبلی نے عوام سے سید احمد پاشا قادری کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے۔ احمد پاشا قادری صاحب کی عیادت کے لیے اویسی ہاسپٹل آئے ہیں۔ ابھی جا کر وہاں پر ڈاکٹر سے بھی بات کرے، پاشا سے بھی کو بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ حالت مزاج ٹھیک نہیں ہے، علاج تو چل رہا ہے ہر زاویے سے۔ بس یہی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی دعا کریں گے، عوام الناس سے بھی یہی گزارش ہے کہ پاشا کی صحت کے لیے دعا کریے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے GHMC کے عہدیداروں کے ہمراہ اپنے حلقے کے مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے VDCC روڈز، NP2 پائپ لائنز اور باکس ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا، جو وراثت نگر، اکبرپورہ، ندیم کالونی اور حکیم پیٹ گورنمنٹ اسکول کے پاس کیے جا رہے ہیں۔ کوثر محی الدین نے متعلقہ عہدیداروں کو کاموں کو پورا کرنے میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ہارون فرحان کے علاوہ مجلس کی ابتدائی صدور اور معتمدین اور دیگر موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ قادری نے سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکریٹری اور ڈپٹی چیف منسٹر کے ڈیوٹی اسپیشل آفیسر ستیہ نارائنا کے ہمراہ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپٹی سیکریٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ شوبھن بابو سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے علاقائی ترقی کے تعلق سے تفصیلی بات کی۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان موجود تھے۔ سکندرآباد کے جمخانہ گراؤنڈ کے پاس انڈر 14 کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں کھلاڑی قطار میں کھڑے دیکھے گئے۔ قطاروں میں کھڑے ہوئے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انہیں میدان میں نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ باہر انہیں قطار میں ٹھہرایا گیا۔ یہ کھلاڑی ریاست اور قومی ٹیم میں نمائندگی کا خواب دیکھتے ہیں
और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो क्रिकेट के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ऐसी ही जद्दोजहद की थी, लेकिन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को कम से कम इन खिलाड़ियों को मैदान में जाने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो वहाँ आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। गांधी हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों की कसरत से मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडर्स में तशवीश देखी जा रही है। हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हॉस्पिटल के अहाते में कुत्ते गश्त करते हुए देखे गए। हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में इक़दामात करें ताकि मरीजों और उनके साथ आने वालों को कोई मुश्किलात पेश न आए। दंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद में हुए हादसे में 2 अफराद बशमूल खातून हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक ज्योति मिल्क कंपनी के पास टिप्पर लारी ने पल्सर गाड़ी को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि खातून रैपिडो के जरिए अपने घर जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ड्रग्स और साइबर क्राइम से मुताल्लिक बंडलागुड़ा के एक स्कूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एसीपी चंद्रायन गुट्टा सुधाकर और इंस्पेक्टर देवेंद्र ने तलबा को ड्रग्स के असरात से खबरदार किया। बढ़ते साइबर क्राइम के बारे में भी तलबा को वाकिफ कराया गया। किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मियों पर पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया गया। कालापत्थर पुलिस ने रॉडी शीटर इमरान उर्फ कॉलर इमरान को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस कलील पाशा ने मीडिया को बताया कि रॉडी शीटर इमरान पर गैर जमानती वारंट ज़ैर इल्तिवा है। उन्होंने बताया कि इमरान पर कई क्रिमिनल केसेस हैं और इसे पेशियों की तारीख में अदालत में हाजिर न होने पर गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। नहीं कुछ और है, रॉडी शीटर है, काला पत्थर पुलिस के रॉडी शीटर है फिर इनको पूछने का हक कौन दिया साहब? रॉडी शीटर वो वेरीफाई कर रहे हैं होटल वाले में क्या है। साहब होटल वालों से कुछ मामूल ले रहे बोल के मालूम हुआ, होटल्स वालों से कुछ मामूल वगैरह दियो बोल के मालूम हुआ, नहीं दे रहे तो लेट नाइट का बिजनेस चला रहे बोल के दारे बोल के इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं आप लोग बोले ना। सबसे सवाल करते हैं पॉलिटिशियन से भी करते हैं, डिपार्टमेंट से भी करते हैं। कुछ मामूल के रॉडी शीटर है, मगर आप पुलिस स्टेशन में कोई ये बात नहीं है। एनडीडब्ल्यू है केस में, तो वो केस में हम पुलिस कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में 5 लाख करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी, 2047 तक 3 खरब डॉलर्स की मईशत बनाने का अज़्म। दिन भर वज़ीर आला और उज़रा की टीमें फ्यूचर सिटी में रहीं सरगर्म। तेलुगु बच्चों की तौहीन और भारी महासिल आयद करने पर क्या हैदराबाद की सड़क को अमेरिकी सदर ट्रंप से मौसूम किया गया? बीआरएस लीडर हरीश राव का सवाल। इंडिगो फिजाई बहरान में कमी, मामूल के मुताबिक परवाजें चलाने का किया दावा। सरमाई शेड्यूल में कमी करने एयरलाइंस को हुकूमत की हिदायत। और हैदराबाद के डोंडिगल में टिप्पर लॉरी ने पल्सर को दी टक्कर, 2 अफराद बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।